So keep patience. See, what is a relation? If x and y, two sets, then a relation R from x to y is a subset of x cross y. So everyone knows what is the meaning of x cross y, right? X cross y, that is also a set. So, so I want to say that is R is a subset of x cross y. It means if AB belongs to R, then we say A is related to B. Okay. So, Indrani, is it okay? यहाँ तक समझ में आया ना? So I want to say R is just a subset of x cross y. What is x cross y? X cross y is this set. Okay. Fine. यहाँ तक समझ में आया ना? Yes, sir. So if empty set is also a subset of this set, right? So this is called empty relation. Also, x cross y is also a subset of x cross y. This x cross y is called the universal relation. सृष्टि थोड़ा पेशेंस बजाय रखना, धीरे धीरे टॉप चीजों में इस लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस बजाय रखना, ठीक है? मुझे पता है कि रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि बेसिक से हो रहा है, इसको थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन and this is called the empty relation. Okay, so number of relations from x to y कितना होगा इंद्रानी? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम x to y. रिलेशन क्या है? रिलेशन तो जस्ट एक सबसेट है ना, तो मुझे बस यही देखना है कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर. मीन्स Sir, 2 to the power m cross n. so number of subsets of x cross y. So if cardinality of x is m and cardinality of y is n, then number of relations from x to y क्या होगा? 2 to the power cardinality of x cross y, राइट? तो हाँ, तुम यही बोल रहे थे आई थिंक. तो 2 to the power cardinality x into cardinality y, it means 2 to the power mn. फाइन इंद्रानी, तुम यही बोल रहे थे ना? Yes, sir. ओके. यहाँ तक समझ में आया ना सृष्टि?
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी नो, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसेट का कार्डिनलिटी ले रहे हैं। तो सबसेट का कार्डिनलिटी क्या होता है? पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का कार्डिनलिटी जितना होता है उतना ही, इट मीन्स 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power cardinality of x cross y. Done. Now, relation on x, किसी एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑन x। तो यहाँ पे एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन फ्रॉम x टू y। नाउ x टू x, ओके, मतलब x एंड y दोनों सेम सेट है। सेम सेट के ऊपर अभी हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ओके। So that is relation on x, means this is a subset of x cross x। समझ में आया? Now a relation R on x is called reflexive relation। If x is related to x for all x belongs to the set, it means x is related to x for all x, मतलब हर एक x के लिए x खुद के साथ रिलेशन में है, ओके। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? कोई बोल सकता है कि अगर इफ x is related to y, it will imply y x is related to x। समझ में आया? That is, if x is related to y, it will imply y is related to x, okay। What is transitive relation? What is transitive relation? So इसको अच्छे से समझो। What is the meaning of that line? Is it true for all xy? Is it true for all xy, Indrani? Is it true for all xy? No, right? This is true for some xy for which x is related to y. Then I can say y is related to x. Okay? समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Now, what about the transitive relation? What is transitive relation? If x is related to y and y is related to z, then x is related to z, okay। so अगर x y के साथ रिलेशन में है, y z के साथ रिलेशन में है, तो इट विल इम्प्लाई x z के साथ रिलेशन में होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक। तो इसमें भी फॉर ऑल एक्स वाई जेड नहीं होगा, इधर भी फॉर सम एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। मतलब जो जिसके लिए वो सारा एक्स वाई जेड लेंगे,
which satisfy this condition, then if the relation is transitive, then from this I can able to write x is related to z. Okay, fine. Now, fourth, equivalence relation. Equivalence relation. If R is reflexive, symmetric, and transitive, then I will say the relation is equivalence relation. Okay. तो और भी रिलेशन है जैसे कि एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक. ओके, इन सब रिलेशन के बारे में अभी मेरे मेरे पास इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, तो उसको मैं छोड़ता हूँ. ग्रुप थ्योरी में किसी एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर कितना सिमेट्रिक रिलेशन मिलेगा, कितना रिफ्लेक्सिव मिलेगा, कितना एंटीसिमेट्रिक मिलेगा, कितना एसिमेट्रिक मिलेगा, इन सब के ऊपर मैंने बात किया था, राइट. तो यहाँ पे मैं उसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा. ओके, उधर जाके मैंने पोसेट के ऊपर नहीं, उधर पोसेट के ऊपर मैंने बात नहीं किया. ठीक है, चलो, अभी जरूरत नहीं है उन सब के ऊपर डिस्कस करना. नाउ, ऑर्डर रिलेशन और सिंपल ऑर्डर और लीनियर ऑर्डर. किसी को पता है इसके बारे में? किसी को भी पता है व्हाट इज दिस? No, ऑर्डर sir. रिलेशन क्या होता है, सिंपल ऑर्डर क्या होता है, राइट? यहाँ तक सब लोगों को पता था ना. ये तो इजी है. हाँ. Yes, sir. ये रिलेशन R on X is called an order relation if R is comparable. What is the meaning of comparable? It means if x1 comma x2 belongs to the set where x1 is not equals to x2, then either x1 is related to x2 or x2 is related to x1. Okay, it is the meaning of comparable. मतलब अगर मेरा एक सेट है, इस सेट का मैं कोई भी दो पॉइंट को उठा लूं, तो ये दोनों पॉइंट अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो x1 x2 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो x2 x1 के साथ इक्वल होगा. अगर ऐसा रिलेशन होल्ड करता है तो उस रिलेशन को हम कॉम्परेबल बोलेंगे. ठीक है. सेकेंड, R is non-reflexive. It means if x belongs to x, then this does not belongs to R. Okay, that is x is not related to x for all x belongs to the set. समझ में आया ना? रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, दोनों का डिफरेंस है, बहुत रिलेशन है, मतलब बहुत डिफरेंस है. एक तो होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है नॉट रिफ्लेक्सिव, और एक होता है नॉन रिफ्लेक्सिव. सृष्टि,
तो तुम मुझे बोल सकते हो डिफरेंस क्या है, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कैन यू से? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सोचो कि रिफ्लेक्स, अगर मैं एक रिलेशन को बोलूंगा नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मीनिंग क्या है? इंद्रानी, कैन यू से? For a relation which is not reflexive हाँ, तो ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? इट means मीन्स if x is ऐसा ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट नहीं आए, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट नहीं आ सकता है, ये भी हो सकता है ना, राइट? अगर एक एलिमेंट नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट इधर क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करना चाहिए इधर। अगर ए फॉर सम एक्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है? अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए ये वाला पेयर अगर आर के अंदर नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। बट इधर एक भी पेयर नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं मिटा दूंगा। अगर मैं 1 2 3 ले रहा हूं, ठीक है? नाउ आई एम टेकिंग टू रिलेशंस, थ्री रिलेशंस, okay? This is the first relation, this is the second relation, this is the third relation, okay? So this is reflexive, okay? Because this kind of pair belongs to the set R1, okay? Because for 1 there is this pair, for 2 2 भी इसके अंदर है, एंड फॉर 3 3 भी इसके अंदर है, ओके? तो बाकी मुझे चेक करने का जरूरत नहीं है, ये क्या है वो सब मुझे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में पता करना चाहता हूँ तो रिफ्लेक्सिव मीन्स x, बिलोंग्स टू द सेट R1, इसको ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए। हाँ, हो रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए, दिस इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कैन यू से व्हाई? बिकॉज 3 के लिए 3 3 वाला जो पेयर है वो इसके अंदर नहीं है, राइट? समझ में आया यहाँ yes तक? sir. बट दिस इज नॉन रिफ्लेक्सिव, क्या ऐसा होगा नॉन रिफ्लेक्सिव? नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? बिकॉज 1 1 तो बिलोंग कर रहा है ना इस सेट के अंदर। एक भी पेयर अगर उसके अंदर चला आया तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे तो फिर से 2 2 भी है, ठीक है? एक भी पेयर अगर चला आया तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट ये सेट देखो, दिस इज नॉन रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई एक सेट नॉन रिफ्लेक्सिव है तो वो ऑटोमेटिकली नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, ठीक है? इसका मतलब कोई भी पेयर नहीं है ना, और कोई भी पेयर नहीं है, एक भी पेयर अगर नहीं रहेगा तो ही नॉट रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। इधर तो कोई भी पेयर नहीं है, समझ में आया? ओके, ठीक है ना, सब लोगों को समझ में आया ना? Yes sir. दैट इज एक्स डज नॉट रिलेटेड टू itself for all x belongs to the set x, okay? डन, इसको मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके?
एंड बट हम लोग किधर थे, हम लोग तो ऑर्डर रिलेशन पढ़ रहे थे ना, तो ऑर्डर रिलेशन कब बोलेंगे, अगर वो कॉम्परेबल होगा, अगर वो नॉन रिफ्लेक्सिव है, एंड थर्ड इफ आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ओके। तो ट्रांजिटिव का तो मीनिंग पता ही है, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड अगर वाई रिलेटेड टू जेड है, इट विल इम्प्लाई एक्स रिलेटेड टू जेड। सो अगर कोई एक सेट के ऊपर एक ऐसा रिलेशन मिल रहा है जो कॉम्परेबल हो रहा है, नॉन रिफ्लेक्सिव हो रहा है, और अगर वो ट्रांजिटिव हो रहा है, तो उस रिलेशन को हम ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। और उस सेट के साथ, जिस सेट के ऊपर हम लोग इस टाइप का ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट को हम विल कॉल इट ordered set. Okay, if R is an ordered relation, or is an ordered relation on X, then X is called an ordered set. Okay. Next is called an ordered set. Okay. Notation. If R is an wait, if R is an order relation, then it is denoted by this. इस सिंबल को क्या बोला जाता है, पता है ना सबको, इस सिंबल को लेस देन बोला जाता है ना। लेकिन इसको लेस देन की तरह मत सोचना, हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट थिंक दिस इज एग्जैक्टली लेस देन, एक्चुअली दिस इज जस्ट अ नोटेशन। ओके, मतलब आर की जगह मैं अभी इसको लिखूंगा, ठीक है, बट एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे क्या एक्चुअली लेस देन साइन है, मतलब यहाँ पे क्या एक्चुअली लेस देन ही रिलेशन है या कुछ और है, मतलब रिलेशन को पता होना चाहिए ना, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आया इंद्रानी, यहाँ तक समझ में आया जो मैं बोलना चाहता हूँ। Yes, sir. ठीक है, ओके, that is this is an ordered set. So this is the order relation. Order relation. Now, if x1 comma x2 belongs to x and x1 is less than equals to x2, अगर मैं इस टाइप से बोलूंगा तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? It means x1, it means either x1 is equals to x2 or x1 is related to x2. अगर बोलने के टाइम में क्या बोलूंगा, x1 is related to x2, because you know कि if I am taking 2 points from x, then it is comparable, right? Because the relation is order relation. So either the points are equal or one is related to other. So it means this. Okay, that is the notation. Third, if x1 is greater than x2, it means x2 is related to x1. Okay, जैसे कि ये कुछ उस टाइप का है, जैसे कि हम लोग सबसेट बोलते हैं ना, इट मीन्स सबसेट, इट मीन्स सुपरसेट, राइट।
तो कुछ उस तरह दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तुम लोग मुझे ट्राई करो कुछ एग्जाम्पल देने का। ट्राई करो। ये समझ में आ गया ना? ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर रिलेशन कॉम्परेबल होता है, नॉन रिफ्लेक्सिव होता है एंड ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। ओके। तो इसका कुछ मैंने नोटेशन दे दिया, आर को मैं अभी इस टाइप से लिखूंगा बस। अभी एक ऑर्डर्ड सेट का एग्जाम्पल देने का ट्राई करो। सृष्टि, कैन यू डू इट? एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? सोचो। Less than equal to on Z हाँ plus. तो हाँ, जेड प्लस मतलब तुम नेचुरल नंबर के ऊपर ले रहे हो, राइट? नेचुरल नंबर, जेड प्लस मीन्स नेचुरल नंबर के सेट ना, Yes. पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो दिस इज एन ऑर्डर्ड सेट। तो दिस इज एन ऑर्डर्ड सेट। तो यहाँ पे जो मैं लेस देन साइन ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअली यूजुअल ऑर्डर जो होता है वही। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर, इट मीन्स if I am saying m is less than n, if n minus m is positive natural number or positive integer. Okay, fine. Integer, ठीक है। इज एन पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया ना ये रिलेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट पता है ना? व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? इट मींस वन, टू, ये वाला सेट ना। ठीक है। तो ये वाला जो सेट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, जो इसको ही हम लोग अभी तक लेस देन साइन नाम बोलते थे, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इस सेट के ऊपर, ये जो रिलेशन मैंने बोला यूजुअल ऑर्डर वाला जो रिलेशन था, वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ओके। वो तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। so that's why this is an ordered set. Okay. इस सेट के बारे में पता है ना? व्हाट इज द सेट? दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड सेट, जहां पे क्यू क्या होगा? ए बाई बी such that a belongs to z, b belongs to natural number and gcd of this is equals to 1. Okay, fine. तो ये भी एक ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर सेट होगा। ओके। थर्ड, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर सेट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? कोई इशू अभी तक? कोई प्रॉब्लम इंद्रानी, सृष्टि, एनी प्रॉब्लम? No, sir. तब तो बहुत इजी चल No, रहा है, sir. अभी प्रॉब्लम आना चाहिए। चलो धीरे धीरे आएंगे, लगेगा तब कि हाँ कुछ सीख रहा हूँ। ओपन इंटरवल, तो किसी को पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरवल? अच्छा, अभी तक ओपन इंटरवल तुम लोग किस जगह में पढ़ रहे थे? बोलो। अभी तक Sir, जो भी पढ़ के आए हो inequalities ओपन में. इंटरवल, नहीं, ओपन इंटरवल किस जगह में पढ़ के आए हो अभी तक? मुझे जितना पता है अभी तक तुम लोग, अगर ओपन इंटरवल के बारे में अगर तुम लोगों को पता है, तो तुम लोग बेसिकली रियल नंबर सेट के ऊपर तुम लोगों को पता है ओपन इंटरवल, जैसे कि 0,1 इसके बारे में पता है, राइट? बट अब हम लोग काम किधर कर रहे हैं? हाय प्राची, डू यू नो हिंदी?
यस सर। ओके, तो चलो तो देखो, अभी तक मैंने ये बोला है कि मेरे पास एक सेट है। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, एक सेट है। उस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। अगर वो रिलेशन कॉम्परेबल है, कॉम्परेबल्स मीन कोई भी दो एलिमेंट अगर मैं ले लूंगा, तो अगर वो एलिमेंट, दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो आइदर x1 इज रिलेटेड टू x2, और अगर x2 रिलेटेड टू x1 हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि कॉम्परेबल है वो वाला रिलेशन। वो रिलेशन को मैं नॉन रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। कब बोलूंगा नॉन रिफ्लेक्सिव? अगर किसी भी x के लिए, कोई भी x के लिए x इज नॉट रिलेटेड टू x, मतलब x कॉमा x, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अगर r को मैं अगर रिलेशन बोलूंगा, तो एक्चुअली r इज अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y। तो यहाँ पे मैं सिर्फ y एंड x यहाँ पे मेरे लिए सेम है, ठीक है, बिकॉज मैं एक सेट के ऊपर रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्सिव। एंड आई थिंक तुम्हें ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पता है। तो अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको मैं ऑर्डर रिलेशन बोलता हूँ, ठीक है। हम लोग उसको ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। और जिस सेट के ऊपर ऑर्डर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उस सेट को हम ऑर्डर सेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और इसके बाद मैंने 3 एग्जाम्पल दिया ऑर्डर सेट का, ठीक है, समझ में आया? प्राची, थोड़ा बहुत मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया। या तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ओपन इंटरवल के बारे में बोलना स्टार्ट करूंगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। ओके, ट्राई करो कि नेक्स्ट दिन से एग्जैक्ट 6:30 पे ही ज्वाइन करने का। हाँ, मतलब मैं एग्जैक्ट 6:30 पे ज्वाइन हो जाता हूँ, सर ठीक है। टाइम ही नहीं पता था। टाइमिंग नहीं पता? नहीं। तो टाइमिंग में बोल देता हूँ। एक है, कौन कौन सा डे है? मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। दिस इज द रेगुलर टाइमिंग। 6:30 से स्टार्ट होगा क्लास, ठीक है। इनमें से शायद ट्यूसडे ग्रुप थ्योरी होगा, और बाकी 2 दिन एनालिसिस होगा, ठीक है, समझ में आया? ओके। एग्जैक्ट 6:30 में ज्वाइन हो जाना, मतलब 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना। मैं 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट पहले मैं डाउट पूछ लेता हूँ। कुछ अगर डाउट है या कुछ बात करना है मेरे से, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके। चलो, नाउ ओपन इंटरवल। व्हाट इज एन ओपन इंटरवल? तो पहले तो मेरे पास ऑर्डर सेट होना चाहिए। इफ x is an ordered set and a comma b belongs to the set x such that a is related to b। यहाँ पे समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? मैंने अभी अभी बोला दिस इज जस्ट अ नोटेशन। अगर मैं बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? या फिर मैं आर भी लिख सकता था, लेकिन अभी मैंने नोटेशन दे दिया है। इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, इट डज नॉट मीन्स बी इज रिलेटेड टू ए। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी, देन now I am defining the open interval. How? A comma b defined by those elements belongs to the set such that a is related to x and x is related to b, ठीक है। is called is called an open interval। समझ में आया? what is the definition of open interval? तो जैसे कि तुम लोग इस सेट के ऊपर अभी तक पढ़ के आ रहे थे, इस सेट के ऊपर ओपन इंटरवल का बारे में तुम लोगों को पता है, ठीक है। ये वाला जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, ठीक है। बाद में जाके टीआईएफआर का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम टीआईएफआर का है, एक प्रॉब्लम एनबीएचएम का है, एनबीएचएम 2021 का। एनबीएचएम के बारे में सब लोग सुने हो ना? हम्म? यस सर। बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है एनबीएचएम का।
और टीआईएफआर के बारे में सुने होंगे। तो बहुत ही अच्छा, तो दोनों ही बहुत ही शानदार एग्जाम है। तो उस एग्जाम में आ, एक क्वेश्चन था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक फंक्शन दिया गया था 8 से 8 तक। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो वहाँ पे ये दिया है कि एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके साथ बोला ये गया था कि अगर मैं इधर का कोई भी बाउंडेड सेट ले लूं, इसका जो प्रीमेस सेट होगा, प्रीमेस सेट को हम लोग एफ इनवर्स ए से डिनोट करते हैं। अगर ए बाउंडेड है तो ए भी बाउंडेड होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो उसके बाद उसने पूछा था कि अगर मैं इधर का कोई भी क्लोज सेट ले रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूँ बी इज अ क्लोज सेट ऑफ आर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इज इट इम्प्लाई एफ ऑफ बी दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। और सेकेंड क्वेश्चन में इसका कुछ था, ठीक है। मतलब इस ओपन इंटरवल के हेल्प से हम लोग उसको प्रूव कर सकते थे। हाँ, कुछ दिया गया था कि इस एक सेट दे दिया था, बोला था क्या वो कनेक्टेड होगा, इस टाइप का कुछ दिया था, ठीक है। तो जब मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कनेक्टेड सेट ये सबसे, तो उसके बाद मैं एक इस क्वेश्चन को उठाऊंगा, ठीक है। समझ में आया? तो डोंट थिंक कि ये जो डेफिनेशन है वो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, इसको मत सोचना। ये सारे डेफिनेशन को थोड़ा मतलब समझ के पढ़ लेना, ठीक है। कैजुअली मत लेना। तो चलो, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गया है नाउ। तो हाँ देखो, इफ दिस इज एम्प्टी, ओके, अगर ये वाला सेट एम्प्टी हो गया, देन P is the immediate successor, स्पेलिंग ठीक है ना, of A, and A is the immediate predecessor of B। समझ में आया? तो अगर वो एम्प्टी सेट हो गया तो बी को हम ए का इमीडिएट सक्सेसर बोलेंगे, और ए को बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर बोलेंगे, ठीक है। इसको अगर, ये जस्ट एक नाम है यहाँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, take this. We already know this is an ordered set, right? Now I am asking, what is this interval? बताओ ये वाला इंटरवल क्या होगा? सृष्टि, क्या होगा ये वाला इंटरवल? प्राची, सर तुम बताओ ये फाइव। वाला इंटरवल क्या होगा? फाइव। हाँ, एम्प्टी सेट होगा ना। इसका मतलब सर क्या है? वो सारा पॉइंट्स होगा नेचुरल नंबर से जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, राइट? ओके, फाइन। नाउ अगर मैं 2 to 9 ले लेता तो इसका मतलब क्या है? अच्छा देखो, तो कोई भी नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं है ना। 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? 2 के बाद है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं होगा इंक्लूड, राइट? तो ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा नाउ। सेम ऑर्डर टाइप और ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म।
ओके, तो देखो टीआईएफआर में, सीएमआई में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन को लूंगा। तो पहले समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम ऑर्डर टाइप। ठीक है, देखो आइसोमॉर्फिज्म वाला वर्ड बहुत सारे जगह में पढ़ोगे। तो जैसे कि इंद्रानी शायद तुम ऐसा पढ़े हो कि ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ओके, वेक्टर स्पेस में आइसोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ये सारा चीज पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, मतलब सुने तो होंगे, राइट। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जगह में बोल तो देते हैं लेकिन उधर डिफिन अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देगा ना, तो उधर डिफाइन करके देगा कि आइसोमॉर्फिज्म का उसका मीनिंग क्या है। अगर वो सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म लिखना है तो वो बोल देगा। बेसिकली डेफिनेशन इतना मैटर नहीं करता बड़े बड़े एग्जाम में, मैंने जितना नोटिस किया है। वो लोग खुद उधर डेफिनेशन खुद दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं। इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है, अगर किसी को कुछ का डेफिनेशन पता नहीं है ना, तो वो बोल देते हैं हाँ ये उसका डेफिनेशन है, अभी तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो लोग जहाँ पे फोकस करते हैं ना, वो है प्रॉब्लम, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। अगर तुम भूल सकते हो उसका डेफिनेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो बोल देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेफिनेशन ही भूल जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म दे रहा है तो तुम पूछोगे आइसो मतलब किस टाइप का आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, फील्ड आइसोमॉर्फिज्म, किस टाइप का आइसोमॉर्फिज्म। ज्यादातर दिमाग में ये चीज नहीं आता। तो जैसे कि इस डेफिनेशन को अभी मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से देखो। सेम ऑर्डर टाइप, ओके। अच्छा, ठीक है। अ, इंद्रानी पहले तुम मुझे बताओ कि सब लोग यहाँ पे ग्रुप पढ़ के आए हो ना, लगभग थोड़ा बहुत आइडिया है। यस सर। सृष्टि, थोड़ा बहुत आइडिया है ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, थोड़ा बहुत आइडिया। यस सर। प्राची, तुम्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया है ना। यस सर। ओके, तो इंद्रानी तुम मुझे बताओ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब शॉर्ट में बताना। ठीक है, शॉर्ट में क्या होता है, ब्रीफली। तो बेसिकली हम लोगों को दोनों ग्रुप चाहिए था ना, दोनों ग्रुप। एक शायद मैंने जी एक ग्रुप ले लिया और एक ग्रुप एच ले लिया, राइट। तो जी ग्रुप के अंदर एक ऑपरेशन है स्टार वन, एच ग्रुप के अंदर एक ऑपरेशन है स्टार टू। अभी मैं बोल रहा हूं कि ये जो दोनों ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है। इसका मीनिंग क्या है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रुप दिखने में अलग है, लेकिन उन लोगों का सेम टू सेम स्ट्रक्चर, लगभग सब कुछ सेम। ठीक है, सब कुछ सेम, राइट। तो इसको जब भी आइसोमॉर्फिज्म टाइप का चीज आता है, तो उसका डेफिनेशन बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वो तुम जी से एच तक लेके जा सकते हो, नहीं तो एच से जी तक लेके जा सकते हो। खासियत ये है, इस फंक्शन को वन वन भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बोल रहे हैं, तो इट मींस इट विल प्रिजर्व द ऑपरेशन। इट मींस अगर ए एंड बी जी का एलिमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, स्टार वन ऑपरेशन होगा। तो ये इसको प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता है मतलब ए कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ ए पे ही तो जाएगा ना, ए का इमेज तो एफ ऑफ ए होगा, ये तो एफ ऑफ ए पे जाएगा। बी कहाँ पे जाएगा, एफ ऑफ बी पे जाएगा। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। तो अगर इन दोनों का जो ऑपरेशन करके कुछ ना कुछ आएगा सी, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार टू, क्योंकि एफ ऑफ ए एच का एलिमेंट है, एफ ऑफ बी भी एच का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ सी का इमेज
यही आएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं वो फंक्शन मुझे एच से जी तक मिल रहा है, वो भी सेम कंडीशन को होल्ड करेगा। और अगर तुम्हें एफ भी मिलेगा, जी भी मिलेगा, ये दोनों मिल रहा है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करना कि जी एक्चुअली एफ इनवर्स ही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना कि अगर मैं आइसोमॉर्फिज्म, जहां जहां पे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बोलूंगा, इट मीन्स मुझे एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलना चाहिए जो उस ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। तो अभी मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? अभी मैं सेम ऑर्डर टाइप और ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बोल रहा हूँ, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास दो ऑर्डर सेट चाहिए। एक ऑर्डर सेट, and this is also an ordered set, or two ordered set. Then we say that x and y have the same order type or order isomorphic, order isomorphic or isomorphic if there exists a bijection f from x to y such that if x1 related to x2, it will imply f of x1 is related to f of x2। इसका मतलब समझ में आया? इसको ऑब्जर्व करो, सेम ही मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बाइजेक्शन चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है। मतलब अगर x1 x2 से छोटा है, मैं छोटा है बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब समझना, यहाँ पे छोटा है नहीं है। इसका मतलब x1 अगर x2 से रिलेटेड है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से रिलेटेड होगा। समझ में आया ना? ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस। इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू। तो मैं एक एक्सरसाइज दू, एक्सरसाइज दू, बताओ। Yes, sir. ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कर पाओगे इसको? हाँ? क्या मुझे कराना पड़ेगा? एक बार ट्राई करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुम्हें दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो प्राची, इसको छोड़ दे या एक पार्ट को करा दे, जैसे कि सिमेट्रिक वाला, ट्रांजिटिव वाला, किसी एक पार्ट, अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए, किसी एक पार्ट को कराना है या छोड़ देना है, पूरा कर लोगे? सर एक करा दीजिए। ओके, तो मैं सिमेट्रिक वाला कराता हूँ। हाँ, एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? तो सिमेट्रिक होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लेट करना है कि एक्सिस ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू वाई। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो मुझे क्या दिखाना है? वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स, राइट? इसको ही मुझे दिखाना है। इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, देन वाई इज रिलेटेड टू एक्स, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। आसान, तुम अभी आया ना, बीच क्लास के बीच में कैसे समझोगे? यस सर।
तो क्या तुम लोगों ने मतलब यहाँ पे एडमिशन ले लिया है? तो मैं एक चीज बता देता हूँ, ओविडुक्ता के साथ तुम लोग बात कर लेना। मेरा जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये मेरा रेगुलर टाइम है। अगर मैं किसी क्लास को मिस करता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने एक टाइमिंग बताया है, तो अभी वो याद नहीं है। शायद एक होगा वेडनेसडे, एक होगा संडे, ठीक है, लेकिन वो रात को होगा शायद। ठीक है, मुझे इतना पता है, रात को। ठीक है, 10:30 बजे से। लेकिन ये जो 3 दिन है, मिस होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस, इसमें शायद एक्स्ट्रा क्लासेस में ले लूंगा, तो 6:30 बजे से होगा। ठीक है, तो मेरा एक अ, ये एक बैड हैबिट है, मैं 6:30 बजे ही ज्वाइन कर जाता हूँ, और इससे पहले ज्वाइन कर जाता हूँ। तो तुम तो 1 घंटा लेट में आए हो, तो नेक्स्ट क्लास से लेट में मत आना, ठीक है। तो अभी क्या करें, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म के बारे में तो तुम्हें पता नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ग्रुप थ्योरी थोड़ा बहुत पता है तब भी चलेगा, नहीं पता है तब भी चलेगा। देखो, पहले हमारा मेरे रोजा पास होता एक है। रिलेशन है। हाँ, क्या? रोजा होता है सर उस क्या? वक्त। रोजा होता है, क्या फास्टिंग। होता है? अच्छा फास्टिंग। अच्छा अच्छा, किस टाइम पे था? 6:30 बजे? हाँ, उस टाइम नमाज के लिए होता है तो इसलिए नहीं आ पाए। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो शुरू का 1 घंटा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अ, ठीक है सर। तो इसको अगर नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ 1 मिनट में। एक मेरे पास रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन अगर 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। वो 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? कॉम्पेरेबल, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्सिव, और एक ट्रांजिटिव। जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में तो पता है। कॉम्पेरेबल मीन्स अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है तो आइदर ये होगा, नहीं तो ये होगा, इन दोनों में से एक होना ही चाहिए। कॉम्पेरेबल मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों पॉइंट को, ठीक है, अगर दोनों सेम पॉइंट नहीं है। नॉन रिफ्लेक्सिव मीन्स एक्स इज नॉट रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए ऐसा होना चाहिए। और ट्रांजिटिव मीन्स अगर एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, वाई अगर जेड के साथ रिलेटेड है, इट विल इम्प्लाई एक्स जेड के साथ रिलेटेड है। तो अभी मैं इस आर को इस साइन से डिनोट करूंगा। तो अगर किसी एक सेट के पास ये ऑर्डर रिलेशन होल्ड करता है इस सेट के ऊपर, तो उस सेट को हम ऑर्डर सेट बोल देंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला सेम ऑर्डर टाइप का मीनिंग क्या है। सेम ऑर्डर टाइप मीन्स मेरे पास 2 ऑर्डर सेट है। एक सेट है ये वाला, और एक सेट है ये वाला। तो ये दोनों सेट को मैं सेम ऑर्डर टाइप बोलूंगा अगर ऐसा मेरे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा, ठीक है, एक्स से वाई तक, जो ऑर्डर रिलेशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता है एक्स में, तो इसका जो इमेज मिलेगा f(x1) एंड f(x2) ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाहिए। तो f(x1) तो अभी y का एलिमेंट हो गया है, तो इन दोनों में ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है ना। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर टाइप। तो हम लोग बोलेंगे एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू और सेम ऑर्डर टाइप टू वाई। ओके, समझ में आया? जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, इसके ऊपर लेस देन जो यूजुअल ऑर्डर होता है, वो एक एग्जाम्पल है ऑर्डर सेट का, ठीक है। इसका मीनिंग यही है ना कि ए लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स बी माइनस ए, दिस इज एन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, राइट। जैसे कि 1 इज लेस देन 2, राइट। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ लेस देन, इट मीन्स एक्चुअली इसको नाम ही बोलते हैं लेस देन, पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो, तो अभी मुझे दिखाना है कि ये जो ऑर्डर रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको मैं एक्सरसाइज देना चाहता था, बट
सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये तीनों को मुझे दिखाना है। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूँ, बाकी दो तुम लोग कर लेना, ठीक है? बिकॉज रिफ्लेक्सिव तो बहुत ही ईजी होगा। वहां पे तुम क्या करना, एफ जो फंक्शन तुम्हारे पास चाहिए उसको तुम आइडेंटिटी फंक्शन ले लेना, ठीक है? तो इसलिए मैं सिमेट्रिक के बारे में करा रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है? एक्स इज सेम ऑर्डर टाइप टू वाई, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई विच इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट, सच दैट इफ एक्स वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, हट जाओ, हटो हटो, जल्दी जल्दी हट जाओ। हाँ, तो अगर इसके ऊपर दिस इज द ऑर्डर रिलेशन, इसके ऊपर दिस इज द ऑर्डर रिलेशन, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट विल इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स वन ऐसा होगा, राइट? समझ में आया? लेकिन मुझे क्या दिखाना है, पहले तो इसको समझो। आई वॉन्ट टू प्रूफ कि सिमेट्रिक मतलब ये दिखाना है ना? हाँ बोलो, यही तो दिखाना है ना सिमेट्रिक मतलब? तो अगर इसको दिखाना है, इसका मतलब क्या चाहिए? मुझे एक फंक्शन चाहिए y से लेके x तक, जो अगर y1 y2 के साथ रिलेट होगा, इट विल इम्प्लाई एफ ऑफ y1, वो एफ एफ ऑफ y1 वो एफ ऑफ y2 के साथ रिलेट होगा, राइट? समझ में आया? तो मुझे एक्चुअली ये फंक्शन को ढूंढना है। ये तो बहुत ही, तुम लोगों को तो समझ में ही आ रहा है ना, इस टाइप से ढूंढना है। उस मुझे मेरे पास अभी तक क्या है, ये एफ है, तो इस एफ के हेल्प से ही तो मुझे ढूंढना है ना, राइट? समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स, क्योंकि एफ एक वन वन ऑन टू फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, दिस इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बट मुझे देखना पड़ेगा क्या ये ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। तो मैं लेट करता हूँ, कोई भी आर्बिटरी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे लिखना ये चाहिए अगर दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है? तो मैं कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट ले लेता हूँ, such that let this and ठीक है y2, देन मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है इसका इमेज भी एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर को प्रिजर्व करेगा, ठीक है? तो बताओ कि एफ ऑफ y1 ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, जैसे कि क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये मेरा x सेट है, ये मेरा y सेट है, तो एफ ऑफ y1 सॉरी एफ इनवर्स ऑफ y1 वो कुछ ना कुछ x1 होगा, एंड एफ इनवर्स ऑफ y2 वो कुछ ना कुछ x2 होगा, राइट? क्योंकि एफ इनवर्स एक फंक्शन है तो y1 का कुछ इमेज मिलेगा, y2 का कुछ इमेज मिलेगा। बट क्या x1 एंड x2 दोनों ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है? मतलब x1 क्या रिलेटेड टू x2 है, यही तो मुझे दिखना है, राइट? सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ये आएगा, क्या ये दोनों सेम हो सकता है? बताओ, क्या ये दोनों सेम हो सकता है? नहीं होगा, क्यों? सपोज अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई, ये दोनों सेम क्यों नहीं होगा? सपोज अगर x1 x2 के साथ सेम हो गया तो इट विल इम्प्लाई एफ ऑफ y1 एफ इनवर्स ऑफ y1 दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y2। अभी बोथ साइड पे तुम f को कंपोज कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो ना? तो अगर f को कंपोज करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ y1 आ जाएगा और यहाँ पे भी आइडेंटिटी ऑफ y2 आ जाएगा।
आइडेंटिटी फंक्शन क्या करते हैं, y1 को y पे ही सेंड करते हैं, y2 को y2 पे ही सेंड करते हैं। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही लेके चला था कि दोनों पॉइंट अलग है, राइट? समझ में आया? तो ये तो सेम नहीं होगा। तो अभी मुझे प्रूफ क्या करना है? आई वॉन्ट टू शो दैट आई वॉन्ट टू शो दैट x1 is related to x2। तो सपोज ए नहीं हुआ मतलब उल्टा अगर हो रहा है, अगर ये हो रहा है, देखो, क्योंकि जो एक सेट है वो तो ऑर्डर सेट है। तो अगर ऑर्डर सेट है, अगर दो पॉइंट इक्वल नहीं है, तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो मैंने लेट कर लिया कि ये अगर हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? सो इट विल इम्प्लाई f of x2 is less than f of x1। बोलो, ये समझ में आया ना? क्योंकि f फंक्शन के बारे में मेरे पास पता है ना, f क्या करता है। अगर ऐसा होता है तो ये होल्ड करता है, ऑर्डर को प्रिजर्व करता है f फंक्शन। बट ऑब्जर्व, व्हाट इज f ऑफ x2? इधर से तुम कुछ बोल सकते हो, इधर से कुछ बोल सकते हो। f of x1 is y1 and f of x2 is y2, right? So it will imply y2 is related to y1। Okay, fine। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया? बोलो। क्योंकि मैंने क्या लेट किया था, उल्टा लेट किया था ना। दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, इस रिलेशन में दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ कब होगा? अगर दोनों, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता, आइदर ये होगा नहीं तो ये होगा। मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जब ऑर्डर रिलेशन का डेफिनेशन बोला था, उधर मैंने क्या लिखा था? देन आइदर ये होगा नहीं तो ये होगा। आइदर होने का मतलब क्या है? दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो लेकिन ये हो गया, सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, फाइन। तो कहाँ पे मेरा गलती हुआ है? यहाँ पे मेरा गलती हुआ है ना। तो दोनों इक्वल भी नहीं है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो इट मीन यही होना पड़ेगा। देयरफॉर x1 is related to x2। ओके, सो x1 क्या था मेरा? f इनवर्स ऑफ y1, ठीक है? दिस इज रिलेटेड टू f इनवर्स ऑफ y2। समझ में आ गया है सबको? बोलो। अगर ऐसा होता है, क्योंकि x1 x2 मैंने आर्बिट्ररी लेट किया है, उसके लिए मैंने सब कुछ दिखा दिया है, सो इट विल इम्प्लाई y इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू x। ओके, फाइन। सब लोगों को समझ में आया ना? हाँ। बाकी जो पार्ट है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ। कर पाओगे ना? बताओ। अभी हो जाएगा इसके हेल्प से। आइडिया आ गया ना? आसान, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। राखी, यस। समझ में आ रहा है ना? टफ लग रहा है यस। चीजें? यस सर। टफ लग रहा है? अरे बाप रे। नो, टफ नहीं लगा। इंद्रानी, तुम तो किधर चले गए? सो गया क्या? तो मैं उठा देता हूँ। म्यूट करके बोल रहे हो क्या? थोड़ा बहुत बातचीत करो मेरे से। आसान। हेलो हेलो हेलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? ओके, ऐसा भी मैं, मतलब मुझे भी नहीं पता कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है? मतलब सब कुछ फॉल्स हो सकता है, सब कुछ ट्रू हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं बस देने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? अभी कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि वो ठीक क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है? चलो, तो इस हिसाब से मत सोचना कि अगर मैं चार ऑप्शन दूंगा तो चार में से एक ना एक ट्रू होगा ही। सब कुछ फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है? ऑफ सेम ऑर्डर टाइप, यहाँ पे सेम ऑर्डर टाइप जो है ना, यहाँ पे जो ऑर्डर रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ, वो है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर मतलब पता है ना कौन सा वाला ऑर्डर? जैसा ऑर्डर हम लोग मतलब लेट करके चलते हैं, मतलब
वन दो से छोटा होता है, कैसा वाला ऑर्डर हम लोग करते हैं इन जनरली। अगर ये मेरा रियल लाइन है, रियल लाइन पे जितना राइट हैंड साइड पे जाएंगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। सेकेंड, नेचुरल नंबर का सेट, क्या ये क्यू के साथ सेम ऑर्डर टाइप है? जेड, क्या ये क्यू के साथ सेम ऑर्डर टाइप है? नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था सीएमआई में, ठीक है। तो एक बार मैं 1 मिनट दे दूं ट्राई करने के लिए, भाग तो नहीं जाओगे All ना? of these are true. ऑल ऑफ दिस आर ट्रू, ओके। मतलब नन ऑफ दिस भी ट्रू है? None of ये these कैसे नहीं ट्रू सर. होगा? अच्छा, बाकी तीनों ना। चलो तुम्हारा तो आंसर हो गया। सृष्टि, तुम्हें क्या लगता है? None of these. ऑल ऑफ दिस, 1 2 3। प्राची, तुम्हें क्या Four. लगता है? क्या बोल रहे हो सृष्टि? आंसर Four. चेंज करना चाहती हो? Four. Four. ओ 4। प्राची, तुम्हें क्या लगता है? अ, अ, कुछ नहीं लगता मेरे को, ऐसा क्या? बोलो सर प्राची। दीजिए। नहीं नहीं, फुल ऑप्शन। ऑल सर ऑप्शनल ये फॉल्स। सर ये तीन वो जो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉनमी होती है ना वो फॉलो करेंगे. क्या? और एक बार। वो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉनमी होता है ना. लॉग। If A and B are any two numbers, then three हाँ conditions they will follow. Either they are equal, or they हाँ। are greater than, अच्छा अच्छा अच्छा, or less than, or equal. लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, शायद तुम ये बोल रहे या हो ना, लॉ ऑफ ट्राई ट्राइकोटोमी। को भूल गया हाँ, था सर इसका नाम. तो ठीक है। वो ठीक है, लेकिन सृष्टि तुमने गलत क्यों बोला? फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत क्यों बोला तुमने? Z minus. हाँ, अनम्यूट करके बोलो ना, क्या बोल रहे तो वो Z माइनस में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इसीलिए. हो? जेड माइनस में ऑर्डर क्या होता है? अच्छा ठीक है, छोड़ो। प्राची, तुम एक बार ट्राई करो, तुम क्यों बोल रहे हो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज रॉन्ग? तुम्हारा आइडिया मेरे साथ शेयर करोगे? नो। सर नेचुरल नंबर में तो मतलब कि 1 से स्टार्ट होता है। और हाँ। और, और ये जो होल नंबर है उसमें माइनस और प्लस दोनों आते हैं। जीरो। अच्छा, सो यू थिंक कि बाइजेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? यस सर। ऐसा सोचते हो सर क्या, ये जो बाइजेक्शन आपने नहीं मिलेगा? ये तो सर गलत है, बाइजेक्शन तो मिलेगा, ठीक है। एक सर एक बाइजेक्शन में तुम्हें देता हूँ। एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, तुम थोड़ा एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है ना। नाउ आई एम गिविंग यू द बाइजेक्शन, ओके। उसके बाद भी यस। होगा। तो 0 1 को मैंने 0 पे सेंड कर दिया, 2 को मैंने 1 पे सेंड कर दिया, 3 को मैंने -1 पे सेंड किया, ठीक है। 4 को मैंने 2 पे सेंड किया, 5 को मैंने -2 पे सेंड किया, 6 को मैंने 3 पे सेंड किया, 7 को मैं -3 पे सेंड किया। समझ में आ रहा है कि बाइजेक्शन मिल रहा है? तो कोई भी इवन नंबर को कहाँ पे लेके जाओ, उसका हाफ पे, राइट। और कोई भी ऑड नंबर को कहाँ पे लेके जाओ, ये जो नंबर है उसके साथ माइनस करना है, बस। समझ में आ रहा है ना, बाइजेक्शन मिल रहा है। देखो 1 1 भी है, 1 2 भी है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए 1000, 1000 का अगर प्रीमियम चाहिए, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 1 2 है, ठीक है। 1000 का अगर प्रीमियम चाहिए, जेट मेरा ऐसा सेट है ना, 0 1 -1 2 -2, राइट।
-3 इसके बाद करते करते 1000 आएगा, 1000 -1000, तो मैं बोलूंगा 1000 का प्री इमेज क्या होगा, 1000 का प्री इमेज क्या होगा, 2000, क्योंकि इसका हाफ करो तो 1000 आ रहा है। देखो आ गया समझ में। और अगर -1000 का चाहिए तो इसके नेक्स्ट वाला ही जो एलिमेंट है वो माइनस वाला देता है, तो मतलब 2001। समझ में आया, तो दिख रहा है ना। और क्या ये भी दिख रहा है कि हर एक मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया उसका प्रीमियस दिखा दिया ना, मतलब ऑन टू है। इधर से कोई भी एलिमेंट को चूज करो, इसका प्रीमियस मिल रहा है मतलब ऑन टू है, 1 1 भी है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग है। ओके, तो ये तो सही है। ठीक है, अभी तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो हसन। सर ये जो आपने लिखा है ये आइसोमॉर्फिज्म लिखा है आपने। हाँ हाँ, आइसोमॉर्फिज्म लिखा है, लेकिन ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म लिखा है, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर से आप मतलब लेते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन बाइजेक्शन। ऑर्डर का अभी डेफिनेशन बोला ना, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म का अभी अभी डेफिनेशन बोला ना तुम्हें। एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलना चाहिए जो ऑर्डर को प्रिजर्व करेगा, मतलब अगर इसमें x1 रिलेटेड टू अगर x2 है, तो इसका जो इमेज होगा f(x1), ठीक है, और इसका जो इमेज होगा f(x2), तो f(x1) y का एलिमेंट है, f(x2) भी y का एलिमेंट है। तो अगर x1 इज रिलेटेड टू x2 है तो f(x1) रिलेटेड टू f(x2) है, ठीक है। लेकिन f(x1) किधर का एलिमेंट है, y का, तो y में ये वाला ऑर्डर रिलेशन है। समझ रहे हो ना, ऑर्डर को प्रिजर्व करेगा। ओके फाइन, अभी समझ में आया। यस सर, तब तो ये तीनों होंगे। तीनों ही ट्रू होगा तुम बोलना चाहते हो, ऐसा ही बोलना चाहते हो, मुझे पता है तुम ये तीनों को ट्रू बोलना चाहते हो, पहले भी तुमने बोला। ठीक है, हाँ सृष्टि तुम तीन। कुछ अलग बोल रहे थे, तुम्हारा आइडिया वही था या कुछ और, सर वही था। मतलब प्राची की तरह बोल रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वही बोल रही थी। अच्छा, तो देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सीएमआई क्वेश्चन, सीएमआई का क्वेश्चन है, टीआईएफआई का क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड होगा, ठीक है, बट तुम लोगों को शॉक लग सकता है। देखो सपोज मैं पहला वाला कर रहा हूँ, सपोज देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद तुम लोगों को, ठीक है पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, पहले बोलूँ या सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद बोलता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी समझ में आएगा उसके बाद, या हिंट दे दूँ। चलो करता हूँ मैं। सपोज ये दोनों सेम ऑर्डर टाइप है, इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम n to z, राइट, such that if n1 is less than n2, it will imply f of n1 is less than f of n2। देखो मैं यहाँ पे z नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे n नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे n लिखने का मतलब अभी तक समझ में आ रहा था ना, मतलब यहाँ पे जो x लिखने का एक ही मकसद था कि वो इसके लिए मैं समझ बोलना चाहता था कि इस सेट के ऊपर जो ऑर्डर रिलेशन है उसको मैंने इस नोटेशन से दिखा रहा था। और यहाँ पे y देने का मतलब इस सेट का जो ऑर्डर रिलेशन है उसको मैं दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, इसको समझ लेना। इसका मतलब यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर रिलेशन, इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है उसका ऑर्डर, जो सेट है उसका ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो अगर इफ n1 इज लेस देन n2 इट विल इंप्लाई f ऑफ n1 इज लेस देन f ऑफ n2। ओके, ये वाला एक फंक्शन मिलेगा, वन ऑन वन टू फंक्शन मिलेगा। और तुम लोगों को ये क्वेरी नहीं होना चाहिए कि नेचुरल नंबर सेट एंड जेड के बीच में बाइजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसके बीच में भी मिलेगा, इसके बीच में भी मिलता है, थोड़े देर बाद जानोगे, ठीक है। मतलब
कुछ दिन बाद जब हम काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे तब जान जाएंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन मिलता तो जरूर है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया ना, एन एंड जेड के बीच में मिलता है, कुछ दिन बाद ये भी दिखाऊंगा एन एंड क्यू के बीच में भी मिलता है, जेड एंड क्यू के बीच में भी मिलता है, ठीक है। ओके। तो देखो, पिक्चर तो ओपन करो, लेट एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एम। तो एम जेड होगा ना, तो इस फिगर को अच्छे से समझो। ये मेरा वन है, ये मेरा टू है, ये मेरा थ्री है। तो वन का कुछ ना कुछ इमेज तो जरूर मिलेगा, उसका नाम मैंने एम दिया, राइट। ओके। तो एम अगर जेड में है, सपोज यही मेरा एम है, तो इसके बाद वाला क्या होगा, एम प्लस टू, इसके बाद होगा एम प्लस थ्री, इसका पहला वाला होगा एम माइनस वन, इसका उसके पहला वाला होगा एम माइनस टू। समझ में आ रहा है? अभी अभी मैंने वन को कहाँ पे सेंड किया है, एम पे, राइट। कुछ ना कुछ इमेज होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि टू को एम प्लस टू पे सेंड करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर, जो तुम फंक्शन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एम माइनस वन ये तो जेड में बिलोंग करेगा, राइट। बताओ, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, तो इस एलिमेंट का एक ना एक इमेज जरूर मिलेगा। सिंस एफ इज ऑन टू, it will imply there exist n belongs to natural number, एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा ना, such that f of n is equals to m minus वन। बोलो सही है ना? इसका एक प्री इमेज मिलेगा। वो प्री इमेज क्या होगा, सपोज एक नेचुरल नंबर ही तो होगा ना, तो मैंने उस नेचुरल नंबर का नाम n लिखा, जो इस एलिमेंट का प्री इमेज क्या है, n है। ओके। अभी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तुम लोगों को दिख रहा है क्या? कुछ दिखा कॉन्ट्राडिक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व, एन वन हो सकता है क्या? कभी नहीं, राइट। क्योंकि क्यों नहीं है, कभी नहीं क्यों है? हाँ? अगर एन वन हो जाएगा तो एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ वन दोनों को सेम होना पड़ेगा। एफ ऑफ एन क्या है, एम माइनस वन, एंड एफ ऑफ वन क्या है, एम। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना? हाँ, बोलो, समझ में आया? तो एन तो वन के साथ इक्वल नहीं होगा, तो एन इज नॉट इक्वल्स टू वन, और बेसिकली दिस इज अ नेचुरल नंबर। तो इन के ऊपर क्या होता है, वन इज लेस देन इन, क्योंकि जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन था, ऑर्डर को प्रिजर्व करने वाला एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ वन इज लेस देन एफ ऑफ एन। बोलो, यहाँ तक ठीक है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। यस सर। तो इट विल इम्प्लाई एफ ऑफ वन क्या है मेरा, एम, दिस इज लेस देन एम माइनस वन, ऐसा ना, क्योंकि एफ ऑफ एन तो मेरा एम माइनस वन है। दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके। क्योंकि एम माइनस वन तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वो कैसे बड़ा हो सकता है, राइट। ओके, समझ में आ गया ना? तो किस लिए कॉन्ट्राडिक्शन आया, लिए कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी भी ये दोनों सेम ऑर्डर टाइप कभी नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा क्या हो गया, मतलब तुम किस टाइप से सोचोगे एग्जाम हॉल में, अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है तो किस टाइप से सोचोगे? हम्म? देखो, टाइप ये है कि वन इज द लीस्ट एलिमेंट, ओके, ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे छोटा एलिमेंट नहीं है।
सो दैट इज द आइडिया, ठीक है। नेचुरल नंबर के एक प्रॉपर्टी होता है ना, वन से छोटा एक भी एलिमेंट नहीं होता, वन सबसे छोटा एलिमेंट होता है, राइट। तो जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करते हो उसमें देखना, स्टार्टिंग करते हैं वन से, उसके बाद किसी एक के पे जाते हैं, उसके बाद के प्लस वन पे जाते हैं, राइट। इस टाइप से करते थे ना। तो नेचुरल नंबर के पास एक बहुत वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होता है, तो वो ये है, वन इज द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोगों ने इस आइडिया का यूज किया, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से प्रूव कर दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कभी नहीं हो सकता। सब लोगों को समझ में आया होगा। तो सर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा फिर। थर्ड ऑप्शन थ्री ठीक होगा, ठीक है, देखते हैं। सर यहाँ पे अभी सेकेंड ऑप्शन में पहले आए, सेकेंड सर वो ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन में आप वो फंक्शन ले सकते हैं ना, वो बताओ। एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन if n is odd, और माइनस n माइनस, तुम थर्ड ऑप्शन के लिए बोल रहे हो। यानी फर्स्ट ऑप्शन के लिए माइनस टाइम्स n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इफ n नो नो, n वेट इज वेट 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 वेट, एक इवन मिनट, हाँ, एक मिनट। ऑड। तुम फर्स्ट, एक सेकंड, हाँ। तुम फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू बोलना चाहते हो या फॉल्स बोलना चाहते हो, पहले ये बताओ। जिस हिसाब से आपने मतलब बोला ना सर, वो उस हिसाब से तो थर्ड ऑप्शन ठीक निकलेगा, नहीं लेकिन नहीं, वो फिर क्या वो, निकलेगा थर्ड ऑप्शन को बाद में देखते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। हाँ सर। तो मैंने तो दिखा दिया, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया, ठीक है, कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नाउ सर अगर तुम बोलना चाहते जो हो कि मैं फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, तो तुम मुझे एक फंक्शन दोगे, राइट। एक्चुअली तुम मुझे फंक्शन भी दे रहे हो, तो तुम वो वाला फंक्शन बताओ, जो तुम फंक्शन बोल रहे थे, बताओ। बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ कौन सा एफ फंक्शन। ऑफ एन हाँ इक्वल टू हाँ हाँ। एन माइनस वन n-1, ओके। if n is odd। n is odd, ओके, नेक्स्ट देन। हाँ, माइनस n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, -n-1 divided by 2 if n is even। वो ब्रैकेट सर ब्रैकेट। हाँ, वो ठीक है, दे दिया। नहीं नहीं, ये माइनस बाहर। ये जी सर। तो देखते हैं। तो एफ ऑफ नेचुरल नंबर से जेड तक ही है ना, उल्टा भी कर सकते हो, जेड से नेचुरल नंबर तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो एफ ऑफ वन क्या होगा बताओ। जीरो। जीरो। एफ ऑफ टू क्या होगा। वन। टू माइनस हाफ आ रहा है, एम आई राइट। अच्छा वन, यस सर। कैसे हो सकता है, ये तो जेड का ही एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली मैंने प्रूफ करके दे दिया है। इस प्रूफ में अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी जगह में गलती है तो मुझे बताओ, लेकिन अगर मैंने प्रूफ करके दे दिया है तो एग्जाम्पल कभी भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल मिल रहा है तो मेरे प्रूफ में गलती है, लेकिन मुझे जो लग रहा है इस प्रूफ में कोई गलती नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट एनी काउंटर एग्जाम्पल, ओके फाइन। ठीक है सर। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेचुरल नेचुरल नंबर का सेट क्या क्यू के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। तो क्या लगता है, ये भी गलत ही होगा ना। सेम सेम आइडिया, अभी जो आइडिया यूज किया ना, वो वाला ही आइडिया लगेगा, राइट। वन को दिखाओ, दिस इज द लिस्ट एलिमेंट, ओके, इसका ही हेल्प लेना है बस, ओके। सो मैं सेकेंड वाला एक्सरसाइज दे देता हूँ, इसको एक बार करके लाना, ठीक है। इसको मैं एक्सरसाइज देता हूँ। नाउ द थर्ड पार्ट। देखो, थर्ड पार्ट के बारे में सोचना है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, जेड एंड क्यू, ठीक है। तो मैं प्राची पहले ही बता देता हूँ कि जेड एंड क्यू दोनों ही काउंटेबल सेट है, बाद में जाके पढ़ोगे तो इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन तो बहुत सारा मिलेगा, बाइजेक्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि बाइजेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है।
सर कार्डिनलिटी सेम होगी। हाँ, कार्डिनलिटी सेम होगी। ऐसा जैसे कि मैं एक चीज बोलता हूँ, बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा कंफ्यूजन में हो। जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि इसका तो 1 2 3 ये ऐसा होता है, और ये तो 0 1 2, उसके बाद -1 -2। इसमें तो दिख रहा है कि बहुत सारा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो तुम क्या सोचोगे इन जनरली, कैसे दोनों का कार्डिनलिटी कैसे सेम हो सकता है, राइट? यही सोचोगे ना इन जनरली। यस सर। बहुत सारा एलिमेंट तो मिसिंग है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट फाइनाइट सेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में दोनों सेट का कार्डिनलिटी मेजर करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इनफाइनाइट सेट को छोड़ो, कोई भी दोनों सेट का कार्डिनलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? हम लोग एक फंक्शन ढूंढने का ट्राई करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, जैसे कि अगर इस टाइप का एक दुकान में जाके हम लोग ऐसा करके, एक होता है ना, हाँ। तराजू। हाँ, शायद हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं। वेट जो मेजर करते हैं दोनों में, यहाँ पे कुछ तराजू। 1 किलो का 2 किलो बैलेंस का कुछ होता है, और इधर बैलेंस हम लोग बैलेंस। दे देते हैं। हाँ, तो जो भी है, ठीक है, तो उसको होना जरूरी था ना। मतलब इस मशीन का हेल्प लेते हैं, इस मशीन के हेल्प से अगर 1 किलो का हम लोगों को पोटैटो चाहिए, तो इधर 1 किलो का एक बाटखरा दे देते। उसके बाद इधर पोटैटो देते जाते जब तक ना दोनों इक्वल हो जाए, राइट? इसको सीधा होना है, यही तो देखते हैं, राइट? ओके, यहाँ पे पकड़ के रहते हैं इधर, ठीक है। तो सिमिलरली दोनों सेट, यहाँ पे मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे भी मेरे पास एक सेट है। इन दोनों सेट का कार्डिनलिटी मेजर करने के लिए इस टाइप का मेरे पास एक होना चाहिए। इस टाइप का मेरे पास क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं? फंक्शन। और उस फंक्शन को बेसिकली 1 1 1 2 होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों 1 1 1 2 होना पड़ेगा? इसका मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ठीक है, इमेज अलग है। और ऑन टू मतलब हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज मिलेगा। तो समझ रहे हो? तो इसका हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, और इसका हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होगा ही होगा। तो समझ रहे हो? मतलब इसमें जितना एलिमेंट होगा, इसमें ही उतना भी एलिमेंट होगा। समझ पा रहे हो? तो तब हम बोल देते हैं कि दोनों फंक्शन का कार्डिनलिटी सेम है। समझ में आया? ओके, समझ में आया ना? यस सर। तो फाइनाइट सेट के लिए ऐसा शायद हो सकता है कि तुम्हें दिख रहा है कि इसमें तो ज्यादा एलिमेंट है, इसमें थोड़ा कम है। फाइनाइट सेट के लिए वो ठीक है, वो तुम्हें इसके हेल्प से भी मिल जाएगा। अगर इस डेफिनेशन को यूज करोगे तो उसके हेल्प से भी मिलेगा। जैसे कि 1 2 3, अगर ए एक सेट है और ए अगर सेट है, तो इन दोनों के बीच में कभी बाइजेक्शन नहीं मिल सकता, बाइजेक्टिव फंक्शन कभी नहीं मिल सकता। लेकिन इनफाइनाइट सेट के लिए, जैसे कि ये दोनों सेट मैंने अभी लिखा है, इन दोनों के लिए जरूर मिलेगा, और मैंने अभी अभी दिखाया कुछ देर पहले, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, तो जरूर मिलेगा। सिमिलरली एन एंड क्यू के बीच में भी मिलेगा, जेड एंड क्यू के बीच में भी मिलेगा। तो सब तुम्हें तो दिख रहा है कि जेड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, बट तब भी इन दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। बहुत बढ़िया चीज है ना फाइनाइट सेट के ऊपर कार्डिनलिटी मेजर करने का, राइट? समझ में आया यहाँ तक? मिलेगा तो जरूर, बाइजेक्शन मिलेगा तो जरूर, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा तो जरूर। हसन, समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर लेकिन क्यों? बाइजेक्टिव फंक्शन, हाँ, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ना। कौन बोला? प्राची तुमने बोला क्यों? नो सर। सृष्टि तुम बोल रहे हो क्यों? हाँ सर। हाँ, मतलब कौन सा क्यू? मतलब जेड एंड क्यू के बीच में क्यू बाइजेक्शन मिलेगा? हाँ सर वही। हाँ, उसके ऊपर अलग सा एक टॉपिक है ना, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, इसके बाद ही
थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे ही आएंगे। तो टेंशन मत लो, अभी मैं जाना नहीं चाहता, थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया, ठीक है अभी तक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में। तो वो बहुत ही आसान एक चीज है, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ, ठीक है, जैसे कि क्यू, ठीक है, मुझे एक बाइजेक्शन बाइजेक्शन चाहिए ना, मैं दिखा देता हूँ, हाँ बाइजेक्शन नेचुरल नंबर के सेट के साथ जेड क्यू के ऊपर, ठीक है, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर के साथ जेड का बोला, नेचुरल नंबर के साथ मैं क्यू का बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनना अच्छे से। क्यू कैसे होता है, 5 6 इस टाइप का, राइट। उसके बाद ये चल रहा है ना, ठीक है, चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो इस नंबर को मैंने 1 से डिवाइड किया पहले, हर एक नंबर को। रैशनल नंबर कुछ इस टाइप का ही दिखता है ना, सब लोगों को पता है। उसके बाद हर एक नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर क्या आया 1/2, पहले इसको ऊपर वाले रो को कर रहा हूँ। 2/2 मीन्स 1, तो 1 ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद मैं 2/3 लिखू, सॉरी 3/2 लिखूंगा, हर एक नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4/2 करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 तो इधर आ ही गया है, तो मैं फिर से नहीं लिखूंगा। उसके बाद 5/2, ठीक है, 6/2 मीन्स 3, इधर आ गया है तो मैं नहीं लिखूंगा। इस टाइप से मैं लिखता जाऊंगा, हाँ। 7/2, 9/2, 11/2, सिमिलरली इधर भी लिखूंगा, -1/2, -3/2, राइट, -5/2, -7/2, -9/2, -11/2, चलता जाएगा ना। अभी इस नंबर को 2 से डिवाइड किया है, अभी हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, चलता जाएगा। अभी मैं मैपिंग दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से मैपिंग को देखना। इधर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रोसेस बोल रहा हूँ। ये जो होगा वो होगा 1 का इमेज, समझ में आया। उसके बाद मैं इधर जाऊंगा, ये होगा 2 का इमेज, ओके समझ में आया। उसके बाद में इधर आऊंगा, ये होगा 3 का इमेज, समझ में आया। तो समझ उसके गया। बाद मैं नीचे आऊंगा, ये होगा 4 का इमेज, ये होगा 5 का इमेज, इसके बाद ये होगा 6 का इमेज, इधर जाऊंगा 7। तो समझ में आ रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। इस टाइप से पूरा जो क्यू है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और इमेज यूनिक हो रहा है, दिख रहा है ना, एक प्रोसेस मैंने तुम्हें दे दिया ना, ऐसा, राइट, देखो पूरा कवर हो रहा है, देखो पूरा कवर हो रहा है, राइट, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, हाँ। एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ जी। सर। बोलो सर। तो जरूर मिलेगा, अगर अभी सोचो एन से क्यू तक भी मिल गया, तो पहले मैंने एन से जेड तक दे दिया था, तो एन से जेड तक अगर है तो जेड से उसका इनवर्स ले लूंगा, तो जेड से एन तक भी हो जाएगा, इसका नाम मैंने एफ दे दिया। और अभी अभी मैंने एन से क्यू तक दे दिया, तो अगर इन दोनों का कॉम्पोजिशन करूंगा तो जेड से क्यू तक भी मिल जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और ये भी तो बाइजेक्शन होगा, मतलब सबका कार्डिनलिटी सेम है अभी तक, जो जो फंक्शन मैंने, जो जो सेट मैंने बोला, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मुझे इस थर्ड क्वेश्चन को कराने दो, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या जेड एंड क्यू ये दोनों सेम ऑर्डर टाइप है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर टाइप है जेड एंड क्यू। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होता है वो है क्यू इज डेंस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्यू इज डेंस। जैसे कि हनी के बारे में बताया ना, हनी, हनी में क्या होता है,
अगर एक बूंद तुम हनी लोगे, ठीक है, क्या तुम उसको इस हनी का इस हनी में ऐसा दो पॉइंट को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब अलग अलग कर सकते हो इस दोनों पॉइंट को? कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राइट? फील कर सकते हो ना, इट मीन्स डेंस। राइट? बहुत डेंस है। जैसे कि मैं अगर बोलूं R1 एंड R2, अगर R1 R2 से छोटा है, दोनों रैशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज एक रैशनल नंबर मिलेगा। राइट? समझ में आया? ये अगर रियल लाइन पे तुम्हें दिखा रहा हूँ R1 R2, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज एक रैशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। क्या बता सकते हो? एक रैशनल नंबर बता दो इन दोनों के बीच में। ये ले लो, R1 + R2/2। राइट? राइट? इन दोनों के बीच में फिर से मिल जाएगा। देखो, दोनों रैशनल नंबर का सम एक रैशनल नंबर, तो उसको दो से डिवाइड कर रहा हो तो वो भी एक रैशनल नंबर, लेकिन दिख रहा है ना, ये एकदम मिडिल में होगा। इन दोनों के बीच में फिर से एक मिल जाएगा, इन दोनों को बीच में फिर से मिल जाएगा, तो हमेशा मिलेगा दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर। तो दैट इज द आइडिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? ओके, दैट इज द आइडिया। सब लोगों को समझ में आया? तो सपोज Z is same order type to Q. So it will imply there exists a bijective function from Z to Q such that if x1 not equals to x2 and अगर ऐसा होता है तो it will imply f of x1 is less than f of x2, right? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बताओ, till now is it fine? ओके, हसन ठीक ठाक है ना अभी तक? कोई यस प्रॉब्लम है सर। अभी तक? सो नाउ, अभी इस आइडिया को मुझे यूज करना है ना, मैंने जो इस आइडिया को बोला, तो कैन यू यूज द आइडिया? जैसे कि देखो, 0 is less than 1, so it will imply f of 0 is less than f of 1, right? So let f of 0 is equals to R1 and f of 1 is equals to R2, इन्हें लेट किया। so obviously ये दोनों तो सेम नहीं हो सकता, राइट? R1 R2 तो सेम नहीं है। अच्छा, R1 एंड R2 के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर मिलेगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है जो R1 एंड R2 के बीच में बिलोंग करता है, राइट? सिंस F इज ऑन टू, क्योंकि F ऑन टू है, तो इसका एक प्री इमेज मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट M, प्री इमेज किधर से आएगा? प्री इमेज तो एक इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू Z such that f of M is equals to R1 plus R2/2। बोलो, सही है? नाउ कैन यू ऑब्जर्व कि M 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता? या इसको मुझे फिर से दिखाना है? हेलो, चार्ज चला गया, रुक जाओ। तो M 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, कैन यू ऑब्जर्व इट? मैं थोड़ा बहुत हिंट लिख देता हूँ, ठीक है? अगर f(1) f(0) के साथ इक्वल हो गया तो क्या होगा? f(m) क्या है? R1 plus R2/2, लेकिन इधर क्या है? R1 है ना? ओके, so it will imply R1 plus R2 is equals to 2R1, so it will imply R1 is equals to R2। समझ में आया? सिमिलरली, अगर f(m) f(1) के साथ इक्वल हो जाएगा तो इट विल इम्प्लाई ये R2 के साथ इक्वल होगा, इट मींस अगेन R1 is equals to R2। दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि R1 तो R2 के साथ इक्वल नहीं होगा। क्यों R1 R2 के साथ इक्वल नहीं होगा? बिकॉज f(0) एंड f(1) इक्वल नहीं है। ये क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि 0 एंड 1 इक्वल नहीं है।
ये दोनों क्यों इक्वल नहीं है? तो 0 और 1 इक्वल नहीं है, तो इज इट इम्प्लाई कि दोनों का इमेज भी इक्वल नहीं होगा? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ इज 1 1। 1 1 होना मतलब दोनों का इमेज अलग होना चाहिए, राइट? दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज अलग होना चाहिए। तो इसको मैंने बता दिया, रीजन भी बता दिया, सब कुछ ही बता दिया। जस्ट प्रॉपरली इसको लिखना है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो चलो, तो मैंने क्या बताया कि m 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अभी समझो, इंटीजर में देख रहा हूं ना, तो 0 इधर है, 1 इधर है। इन दोनों के बीच में m नहीं हो सकता, राइट? तो अगर m होगा तो m को इधर होना पड़ेगा, अदरवाइज m को इधर होना पड़ेगा। दोनों के 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है ना, राइट? तो केस 1, m 0 से छोटा है। तो अगर m 0 से छोटा है तो इट विल इम्प्लाई f ऑफ m इज लेस देन f ऑफ 0। इट विल इम्प्लाई f ऑफ m क्या है? r1 प्लस r2/2। दिस इज लेस देन r1। दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे? ये तो बड़ा होता है ना r1 से। हाउ इज इट पॉसिबल? देन व्हाट इज केस 2? अगर m इधर रहा, राइट, इधर अगर m रहा तो it will imply f of 1 is less than f of m. It will imply r2 is less than r1 plus r2/2. How is it possible? Right? समझ में आ रहा है ना? ये तो इन दोनों के बीच में है ना, कैसे r2 के बाहर उधर जा सकता है? राइट? समझ में आया ना? सबको सबको समझ में आया? तो hence I can conclude that Z is not same order type with Q. So ये भी गलत है। सेकंड वाला भी तो सेम क्राइटेरिया से गलत होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू। ओके, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो हसन, समझ में आ रहा है? बोलो, मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, बोलो। लास्ट स्क्रीनशॉट वाला लेना थोड़ा है? हाँ, बोलो 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 बोलो। लास्ट वाला थोड़ा बता दीजिए। हाँ, लास्ट वाला बता देता हूँ, देखो। लास्ट वाला मतलब केस 2 वाला। नहीं सर, ये थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा। और भी ऊपर। नहीं बस। देखो, मैं शुरू से बोलता हूँ, देखो। मैं लेट कर लेता हूँ, विल, इस ऑप्शन को मैं डिस्कट करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट ट्रू, ओके? तो ये ट्रू क्यों नहीं है, इसको मैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि दिस इज ट्रू, ठीक है? तो अगर ये ट्रू है तो डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसा एक एफ मिलेगा जो बाइजेक्शन होगा और के साथ ऑर्डर को प्रिजर्व करेगा, राइट? ऑर्डर को प्रिजर्व भी करना चाहिए, ओके? तो देखो, 0 1 से छोटा है, यूजुअल ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है ना। 0 अगर 1 से छोटा है तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि एफ वो ही तो ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है ना। एफ को ही तो मैंने ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप लिया है, तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 से छोटा होगा। तो मैंने लेट किया कि एफ ऑफ 0 कुछ ना कुछ तो होगा, इसका तो कुछ ना कुछ इमेज होगा, 0 का तो कुछ ना कुछ इमेज होगा। उसको मैंने R1 लेट किया, सिमिलरली एफ ऑफ 1 को मैं R2 लेट किया। तो ये क्या बोल रहा है? R1 इज लेस देन R2, राइट? ठीक है, समझ में आया? यही तो बोल रहा है ना, हम्म, R1 इज लेस देन R2। अभी सोचो, रियल लाइन पे क्या होता है? दोनों रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होता है ना, यही तो मैंने बोला, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। दोनों रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होता है। तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है। R1 अगर एक रैशनल नंबर है, R2 अगर एक रैशनल नंबर है, तो R1 प्लस R2 क्या एक रैशनल नंबर नहीं होता? पहले इसको समझो, ये भी एक रैशनल नंबर ही होता है ना। देखो, रैशनल नंबर किस टाइप का दिखने में होता है? कुछ इस टाइप का दिखने में होता है ना। दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? AD प्लस BC बाई BYD। ये भी तो ऊपर में कुछ है, नीचे कुछ है। B और D दोनों तो जीरो नहीं है, राइट? तो BD भी जीरो नहीं होगा।
तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है, इसको यही तो और मेरा R1 है, यही तो मेरा R2 है, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। और ऐसे ही तो हम लोग मिडिल रैशनल नंबर को निकालते हैं ना। अगर किसी को मिडिल पॉइंट, जैसे कि अगर 2 और 4 इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? 2 + 4/2, देखो 3 ही आएगा। देखो यही तो 3 है ना, इन दोनों से सेम डिस्टेंस वाला। 2 से 1 डिस्टेंस, 4 से 1 डिस्टेंस, राइट। तो ऐसे बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, मैंने एक रैशनल नंबर लिखा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा था, ये तो 1 1 on 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, और इसका नाम मैंने सपोज R3 लिखा, हाँ, इधर सपोज R3 है। तो क्योंकि ये फंक्शन 1 1 on 2 है, तो इधर मेरा R3 है, तो R3 का प्री इमेज मिलेगा ना। ओके, तो R3 का प्री इमेज को मैंने M बोला। M इज द प्री इमेज, M इज द प्री इमेज मीन्स एफ ऑफ M R3 होगा। बोलो, ठीक है, ओके। तो जो M होगा वो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, राइट। 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, राइट। मतलब ये जो मैंने M लिखा है, ये जो M, क्या वो 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने रीजन बोल दिया है, M 0 नहीं होगा और M 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो M किधर से है? M तो एक इंटीजर है ना। तो अगर M एक इंटीजर है और मैं बोल रहा हूँ कि 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, तो M को किधर होना पड़ेगा? 0 के इस साइड में, नहीं तो 1 के इस साइड में, क्योंकि 0 और 1 इसके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं हो सकता ना। बोलो, समझ में आया यहाँ तक हसन? यस बताओ। तो अगर 0 के इस साइड में होगा, तो मैंने ये फर्स्ट केस लिया, तो इधर से क्योंकि मुझे एफ मैपिंग के बारे में पता है, वो ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, तो f(m)(0) होगा। बोलो, समझ में आया? तो f(m) ही तो मेरा R1 + R2/2 था, वही मैंने लिखा, ठीक है। और दिस इज लेस देन f(0)। मेरा क्या, f(0) को तो मैंने R1 चूज किया था, तो दिस इज लेस देन R1। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो, इसको देखो और इसको देखो, वहां पे लिखा था इसको, ऐसा पॉसिबल है? अरे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ R1 छोटा है इससे, नो सर लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ R3 R1 से छोटा है। कैसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ठीक है। सिमिलरली, अभी 1 के राइट हैंड साइड में अगर M रहेगा, तो ये वाला केस, ठीक है, तो फिर से F ऑर्डर प्रिजर्व करेगा, तो इट विल इम्प्लाई R2 इससे छोटा हो जाएगा। इस फिगर को फिर से ऑब्जर्व करो, इन दोनों को फिर से ऑब्जर्व करो, ठीक उल्टा बोल रहा है ना। बोलो, ठीक है। यस तो दोनों ही केस पॉसिबल था, ये इधर हो सकता था, नहीं तो इधर हो सकता था, लेकिन दोनों ही केस को अगर मैं ऑब्जर्व किया तो देखा दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत चीज चूज किया था, ये मैंने गलत लेट किया था। तो दिस मेथड, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं ना कि अगर मैं बोलूं हसन तुम जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि अगर तुम ठीक हो तो प्रूव कर दो। अ- अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं इस टाइप से बोल सकता हूँ ना, तुम प्रूव करो कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसको प्रूव कर दो। तो ये हो जाएगा ना कि ये अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना। समझ में आया? दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैंने इसको लेट करके चला, देखा कि ऐसा ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब इस बात से जाने के बाद मैंने देखा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है। तो पी इम्प्लाई ये क्यू सारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आया? इसको मैंने लेट करके चला, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आया ना।
तो दिस इज रॉन्ग, यही रॉन्ग है, इसलिए तो गलती हो रहा है ना इधर, तो ये गलत है। इट मीन्स जेड इज नॉट आइसोमोर्फिक टू क्यू। ओके, समझ में आ गया ना सबको? सर अगर इसमें ये निकाले कंडीशन ऑन 1 1 ऑन तो तब तो ये ठीक होगा ना? 1 1 ऑन टू कंडीशन मतलब? जो मतलब डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन मतलब में तुम 1 1 ऑन। फंक्शन देना चाहते हो ना, ये तो बोलना चाहते हो, तुम फंक्शन देना चाहते हो, लेकिन फंक्शन तो मिलेगा ही नहीं, मैंने तो दिखा दिया नहीं, मैं कि कह ये रहा हूँ फंक्शन। हाँ जो बोलो। आपने वो इसमें लगाया ना, मतलब वो हेल्प लगाई उसकी बाइजेक्शन की, हम्म। तो फिर कंट्राडिक्शन आया। अगर हम ये हाँ, बाइजेक्शन को मतलब ये एक्सक्लूड करें ये केस कंडीशन, तब तो ठीक है ना सर? एक्सक्लूड किसको करना है? बाइजेक्शन कंडीशन को, मतलब अगर डेफिनेशन, अरे बाइजेक्शन, अगर डेफिनेशन तो डेफिनेशन बोल उतनी दिया ही गया है होती। ना। डेफिनेशन हाँ, तो यू डेफिनेशन जैसे कि तुम कैसे डेफिनेशन को हटा सकते हो? वो तो हाँ सर वो, डेफिनेशन है ना, हाँ सर। वैसे ही तो डेफिनेशन डिफाइन हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ राइट। कि अगर हो अगर डेफिनेशन तुम में नहीं होता। अगर अरे वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर तुम 4/2, ये 2 ही हो रहा है ना, ये तो एक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर तुम बोलोगे कि ये डेफिनेशन नहीं होता, अगर डेफिनेशन नहीं होता तो कुछ अलग प्रोसेस होता। राइट, समझ में आया? तो एक पर्टिकुलर वे में चलना होता है ना। यस सर, यस। या फिर डेफिनेशन दिया हुआ है, अभी तुम उसको क्यों ऐसा बोलोगे? तो डेफिनेशन, तुम नया डेफिनेशन क्रिएट करना चाहते हो तो, राइट। ऐसा तो नहीं होता, वो इंजीनियरली होता जा रहा है, वो डेफिनेशन डिफाइन करके दे दिया है, तो उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ओके। यस सर। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से क्लास चलेगा, मैंने तीनों डेट बोल दिया। इन तीनों डेट में एकदम एग्जैक्ट 6:30 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसके 5 मिनट पहले तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो।